Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22 of mathematical statistics. In the last class, we discussed the binomial distribution and did some problems and exercises on it. Then we defined a Poisson process and also the Poisson distribution. Today's agenda is we start off with the Poisson distribution and do some problems and theorems on it, and then we define the continuous distributions, and in that we will define the uniform distribution in the first instance. Binomial और distribution हमने देखी थी, uniform distribution देखी थी and Poisson distribution देखी. ये सारे discrete case है क्योंकि यहाँ पे random variable x जो है वो discrete values ले रहा था, numbers आ रहे थे. जब हम कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस फिर हम डिस्कस करेंगे वहां पे जाके. अभी चलते हैं. वी स्टार्ट ऑफ विद द सेम डेफिनेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x representing the number of outcomes occurring in a given time interval or specified region denoted by t is given as probability of x semicolon lambda t, which is also known as mean value, equals e raised to power minus lambda t raised to power x over x factorial, where x can go from 0, 1, 2 up till infinity. And we can always define a summation of the Poisson distribution which starts from x0 to r, and we write it as r semicolon lambda t, and it's basically a sum of all the Poisson probabilities, where lambda is the average number of outcomes per unit time. It can be per unit distance, per unit area or per unit volume, and exponential की वही वैल्यू है जो हमें हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, which is 2.71828. Let's start off with the Poisson distribution and check is it probability or not. सबसे पहले हम लिखते हैं is equal to x comma semicolon lambda t is equal to e raised to power minus lambda t raised to power x over x factorial. ये हमें पता है कि x can go from 0, 1, 2 up till on and so on. Let lambda t be replaced by mu. ये सिर्फ ये है कि लिखने में ज़रा आसानी हो जाएगी, else इसमें कोई ज़रूरत नहीं हमें. p x mu is equal to e raised to power minus mu raised to power x over x factorial. Now we want to see if this is probability and it's normalized. Probability के बारे में हमें एक चीज़ पता है हमेशा से कि कोई भी probability है fx, it should add up to 1 for all values of x from 0 to infinity. अब ये हमने चेक करना है Poisson distribution के लिए. तो बाकी आप देखें कैसे करेंगे हम. We'll just put summation for x equal to 0 to infinity on p x mu, and it will be equal to x equal to 0 to infinity e raised to power minus mu raised to power x over x factorial. इसमें अगर देखा जाए e raised to power minus mu is a constant, वो x पे डिपेंड नहीं करता, तो हम इसको आउट ऑफ द समेशन लेके जा सकते हैं. हम वो चीज़ जो कांस्टेंट है उस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती, समिंग वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती, उसको आउट ऑफ द समेशन लेके चले जाते हैं. 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, म्यू रेज टू पावर x ओवर x फैक्टोरियल. इसको यहाँ पे लिखते हैं कि e रेज टू पावर माइनस म्यू, तो एज इट इज रहेगा, और ये जो समेशन है इसको हम टर्म बाय टर्म लिख लेते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 0,
you will have mu raised to power 0, our 0 factorial, then plus x is equal to 1, mu raised to 1, our 1 factorial, plus mu raised to power 2, our 2 factorial, and so on so forth. We will have mu raised to power n, our n factorial, and up till infinity. We will go on like this. If I solve the powers, mu raised to power 0 is 1 and 0 का factorial is equal to 1. You remember that? यह हमने बताया था शुरू में कि 0 का factorial भी 1 होता है और 1 का factorial भी 1 होता है. ये हमने शुरू में बता दिया था. तो it is equal to 1 plus mu square, our 2 factorial, plus mu cube, our 3 factorial, and so on so forth. अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म देखें, ये वाली टर्म देखें प्लीज, और इफ यू रिमेंबर द मैक्लॉरन और द टेलर सीरीज ऑफ e रेज टू पावर x, वो क्या थी, या e रेज टू पावर y मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो होती थी कि 1 प्लस y स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस y क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर आपको मैक्लॉरन टेलर सीरीज के बारे में नहीं पता तो डजंट मैटर. ये e रेज़ टू पावर y जो है ये रिप्रेजेंटेशन है इस सीरीज का. इस सीरीज को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एज e रेज़ टू पावर y. अगर आप इस सीरीज को सॉल्व करें तो आपको e रेज़ टू पावर y की वैल्यू मिलेगी. और इसमें एक और चलते चलते एक खूबसूरत बात बता दूं. यू रिमेंबर के डेरिवेटिव्स में आप करते थे d बाई डी y of e raised to power y is again e raised to power y. You remember this thing? Yes. So अगर इसमें मैं करूं दोनों तरफ d by dy e raised to power y, तो वो क्या बनेगा, टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव लेंगे. फर्स्ट टर्म का 0, सेकंड टर्म का 1, थर्ड टर्म का y 2y ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से 2 कट जाएगा तो फिर 1 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस y स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो अगेन ये 0 भूल जाएं अगर हम, तो इस अगेन e रेज़ टू पावर y. सो ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है. सो दिस सीरीज इज द e रेज़ टू पावर y. सिमिलरली हमारे पास जो ब्रैकेट्स में टर्म है वो क्या बनेगी, e रेज़ टू पावर म्यू. इसको ऐड करें, इस सीरीज को देखें तो ये चीज बनती है, और माइनस म्यू इंटू प्लस म्यू, तो ये बनेगा माइनस म्यू प्लस म्यू इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1. Hence, therefore, I can say this thing is equal to 1, and sum of from x0 to infinity of Poisson probability of x mu is equal to 1. This implies it is indeed a probability distribution, and secondly it is normalized. तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये नॉर्मलाइज्ड है, और ऑब्वियसली अगर नॉर्मलाइज्ड है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकती है. नेक्स्ट चलते हैं जी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. बोथ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन p x semicolon lambda t are lambda t. That means the mean value of p is, अगर रैंडम वेरिएबल x था तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो बराबर है लैम्डा t के, और सेकेंडली एंड मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ x इज अगेन इक्वल टू लैम्डा t. ये दो चीजें कही गई हैं इस थ्योरम में, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम अक्सर म्यू भी कहते थे. तो अभी हम चलते हैं, पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो p ऑफ x लैम्डा t is given as e raised to power minus
इसको म्यू रख लूँ थोड़ी देर के लिए, लैम्डा की को लेट आई वुड से लेट lambda t is equal to mu so that I can solve it easily. Mu raised to power x our x factorial. Now to find the expected value of this of a random variable x, we know it is always x 0 से लेके infinity तक x into the probability of x lambda t. ये तो होगा definition of expected value. Remember that this is a definition of expected value. इसमें अगर values डालते हैं हम तो x is equal to 0 to infinity x into e raised to power minus mu raised to power x our x factorial. मैं यहाँ पे आगे इसे ले जाता हूँ कि x is equal to 0 to infinity. अब यहाँ पे जो x था और e raised to power minus mu raised to power x और नीचे था x factorial, इसको मैं लिखता हूँ x into x minus 1 का factorial, which is not a problem because यह हमें पता है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो यहां से ये x और ये x कैंसिल हो जाता है. और सेकेंडली दिस म्यू रेज टू पावर x कैन बी रिटन एज म्यू इंटू म्यू रेज टू पावर x माइनस 1, क्योंकि जब हम दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, दोबारा से ये x बन जाएगा. So I can write it as x is equal to 0 to infinity e raised to power minus mu into mu raised to power x minus 1 over x minus 1 factorial. और नेक्स्ट आप ये अब ये वाला म्यू देखें, ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, एन एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, और समेशन जो हो रही है वो एक्स पे हो रही है. तो इस म्यू को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो बाकी क्या बचता है मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी था. तो उसका एक तरीका यह है कि अगर मैं 0 डालूं तो ये 0 माइनस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल विच डज नॉट एग्जिस्ट. और अगर टर्म्स में लिखूं तो ये बचता है x इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, एंड वी आर लेफ्ट विद यस e रेज टू पावर माइनस म्यू एंड म्यू रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का फैक्टोरियल. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज, नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो उस पे देखते हैं इसको कि we were the expected value of x was mu summation x is equal to 1 to infinity e raised to power minus mu raised to power x minus 1 over x minus 1 का फैक्टोरियल. और इसमें इफ आई से लेट y equals x minus 1, this implies x is equal to y plus 1, या इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं कि जब x 1 होगा, when x will approach 1, y will approach 0. When x approaches infinity, y again approaches infinity. तो ये अगर लिमिट्स डाल दूं यहाँ पे तो वी गेट म्यू y इक्वल 0 टू इंफिनिटी, x क्योंकि 1 तक जा रहा था तो y जो है 0 को जाता है इस डेफिनेशन के मुताबिक, दैट इज x माइनस 1 की डेफिनेशन के मुताबिक. तो e रेज़ टू पावर माइनस म्यू रेज़ टू पावर y
our y factorial. And if you look at this right hand side, this is again what? Summation over all values of Poisson process, और हमने normalization में देखा कि this is equal to 1. This whole thing should be equal to 1. यह भी हमने एक स्लाइड पहले देखा था. So I am left with mu which is equal to lambda t जो मैंने रखा था, and this is the expected value of the random variable Poisson random variable x. So expected value of Poisson random variable x is equal to lambda t. तो पहला पार्ट तो इसका ठीक हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं जी, सेकंड पार्ट करते हैं. उसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा जस्ट टू बी क्विक and save space. Let's say first I find the expected value of random variable x into x minus 1 की expected value निकालते हैं, and it should be by definition go from x0 to infinity. Random variable या function of random variable which is x into x minus 1, it is x into x minus 1 into the Poisson का जो भी था minus mu raised to power x over x factorial. जब x into x minus 1 से इसको काटूंगा तो I will left with x minus 2 का factorial, क्योंकि x भी खत्म हो जाएगा, x minus 1 भी खत्म हो जाएगा, तो x minus 2 का factorial बचेगा. यहां से mu raised to power x से मैं mu square कॉमन ले लूं तो बाकी क्या बचेगा? mu into x minus raised to power x minus 2. So we are left with mu square मैंने वहां से कॉमन लिया, और सेकेंडली क्या होगा? अब x की वैल्यू अब कहां से शुरू होगी? 2 से, क्योंकि x minus 2 will, yes, x minus 2 should go from 2 to onwards. To infinity, e raised to power minus mu and mu raised to power, yes, x minus 2 over x minus 2 का फैक्टोरियल. ये हो गया. अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो लास्ट एग्जांपल में किया था कि लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2, वो उसमें डाल देंगे तो विल हैव म्यू स्क्वायर इनटू 1. यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए. किसके लिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 के लिए. इसको हमने कैसे यूज करना है? लेट्स ओपन दिस थिंग. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x into x minus 1, it becomes expected value of x square, yes, minus x. इसमें से अगर मैं ऐड कर दूं एक expected value of x इसमें, तो ये क्या बनेगा? It will come, this whole thing will become expected value of x square minus expected value of x plus expected value of x. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो I will left with expected value of x square. और अगर आपको याद हो तो sigma square is expected value of x square minus expected value of x whole square. Expected value of x square किसके बराबर है जी? It is equal to expected value of x into x minus 1 plus ex. So it is expected value of x into x minus 1. यहाँ से इधर आ गया. फिर हमने एक इसमें ऐड करना था ये चीज प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और फिर ये वाली टर्म माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर. सो पहले आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे म्यू स्क्वायर आ रहा है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का म्यू स्क्वायर आ रहा है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? प्लस म्यू, और यहाँ पे
माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज म्यू, अगर याद होगा आपको तो ये माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये म्यू स्क्वायर और ये म्यू स्क्वायर कट जाता है, तो एक्सपेक्ट सिग्मा स्क्वायर भी मेरा म्यू ही आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर भी म्यू ही आ रहा है. सो वी हैव प्रूव दैट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन the mean value is equal to mu and the variance is also equal to mu. That means the mean and variance of a Poisson distribution are equal to lambda t, because we said mu is equal to lambda t. I hope कि आपको ये समझ आ गया. यहाँ पे सिर्फ हमने एक ट्रिक यूज किया, वो ट्रिक क्या थी कि ये निकालना मेरे लिए आसान था फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एंड इसको अगर देखा जाए तो वो व्यंता क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. अगर ये टर्म हम यूज करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरी टर्म मैंने डाल दी, और माइनस जो फॉर्मूले का था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर वो डाल दिया. वंस आई प्लग इन द वैल्यूज आई गेट द वैल्यू फॉर सिग्मा स्क्वायर. प्लीज डू ट्राई दिस, रिपीट इट on a blank sheet without looking at my results, and then if you can prove it, yes, you have learned it. So अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि expected value of Poisson distribution and variance दोनों same है and they are equal to lambda t. Next चलते हैं जी. What is Poisson's distribution after all? Poisson's distribution as limiting case of binomial distribution. कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक रीजन में जाके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को मैच कर जाती है. इट शुड बी एविडेंट फ्रॉम द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉइसन प्रोसेस दैट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल्दो द पॉइसन distribution usually finds application in space and time problems, but it can be viewed as a limited form of the binomial distribution. In the case of the binomial, if n is quite large, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज्यादा is quite large and p is small, the condition begins to simulate the continuous space or time region implications of the Poisson process. The independence among Bernoulli trials is the binomial case is consistent with the property 2 of the Poisson process. क्या है? The independence among Bernoulli trials. Bernoulli trials में क्या होता था, पहली आउटकम और दूसरी आउटकम आपस में इंडिपेंडेंट होती थी, और Poisson process में हमने यही कहा था कि अगर मुझसे पहले एटीएम मशीन पे कोई गया या नहीं गया उससे मेरे इरादे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंडिपेंडेंट हूँ टू एनीबडी एल्स हु हैज बीन देयर. सो ये हमने प्रॉपर्टी 2 ऑफ पॉइसन प्रोसेस में जब ये बातें की थी तो दोनों तकरीबन सेम है, दोनों की आउटकम्स इंडिपेंडेंट है. Allowing the parameter p to be close to 0 relates to property 3 of the Poisson process. Indeed, if n is large and p is close to 0, the Poisson distribution can be used with p is equal to np, that means mu. Mu is equal to np to approximate binomial probabilities. If p is close to 1, we can still use the Poisson distribution to approximate binomial probabilities by interchanging what we have defined to be a success and a failure. Therefore, changing p to a value close to 0. ये इंटरेस्टिंग है इन अ सेंस. वो क्या कह रहे हैं कि जी अगर मेरी प्रोबेबिलिटी अप्रोच 0 करे और n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, सो म्यू जो है वो n p के बराबर ही रहेगा, मीन वैल्यू यही रहेगी. फॉर बायनॉमियल में क्या था, मीन वैल्यू थी ना, तो ये कोई नंबर फाइनाइट नंबर आएगा क्योंकि एक 0 को अप्रोच कर रहा है और एक इन्फिनिटी को, तो 0 इंटू इन्फिनिटी एल हॉपिटल रूल लगाएं तो वो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा एंड म्यू शुड बी फाइनाइट. ये तो एक बात होगी. दूसरा ये है कि अगर p मेरा 0 को अप्रोच ना करे मगर 1 को करे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं p की जगह q को यूज कर सकता हूं. p 1 को अप्रोच कर रहा है दैट इंप्लाइज q जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, और जो फेलियर है उसको मैं सक्सेस कह दूंगा और सक्सेस को फेलियर कह दूंगा और रिजल्ट्स को अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर लूंगा.
कि लेट से मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ 5 दफ़ा और मैं कहता हूँ मैंने हेड्स देखने हैं और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हमने 22 कॉइन किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.9 है। तो इस केस में मैं, ट्रायल्स इन्फिनिट है, एन बहुत लार्ज है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.9 है, मगर इस केस में एन पी करने से मेरा एक नंबर सही नहीं आता। मैं क्या करता हूँ, हेड को छोड़ के मैं टेल को देखना शुरू कर देता हूँ। वो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि हेड की 0.9 है तो टेल की 0.1 होगी, तो वो छोटी है। तो फिर मैं यही सारा प्रॉब्लम टेल के साथ करके उनके रिजल्ट्स को पे इन्वर्स कर लेता हूँ टू टेल अबाउट द हेड। तो लेट्स लुक एट दिस फॉर्मूला व्हिच सेज कि लेट x be a binomial random variable with probability distribution b, x and p। अगर याद करें आप तो x क्या था, कितनी सक्सेसेस, n total number of trials and p the probability of success। तो let x be a binomial random variable with probability distribution x and p। When n approaches infinity, p approaches 0, then n into p approaches mu remains constant. Then we can say that a binomial random variable can be represented as a Poisson random variable. A binomial random variable can be represented as a Poisson। तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए to use the Poisson distribution to solve problems in the binomial distribution। Let's look at this example. The probability of an accident on any given day is 0.005। तो probability of an accident किसी एक दिन पे होने के लिए क्या है, 0.005 है। And accidents are independent of each other, यानी कि दो एक्सीडेंट्स का आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है। What is the probability that in any given period of 400 days, n is equal to 400 days, there will be an accident on one day। तो क्या कह रहे हैं हमें कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है x इक्वल टू 1 की, कि एक एक्सीडेंट हो ऑन एनी वन डे। और अगर हम इसको देखें n इज इक्वल टू 400, p इज इक्वल टू 0.5, तो म्यू विच इज बेसिकली लैम्डा टी, हम कहीं लैम्डा टी यूज करते हैं, किसी जगह पे हम म्यू यूज करते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दोनों ही यूज होते हैं क्योंकि अब तो हमने प्रूव कर दिया कि मीन वैल्यू इज लैम्डा टी। सो हम लैम्डा की जगह इजीली म्यू रख लेते हैं। एंड इट विल बी इक्वल टू एन पी एंड इट इज इक्वल टू 400 into 0.005, which is 2। And if I find probability of x equal to 1, it will be e raised to power minus lambda t raised to power x over x factorial, and it is equal to e raised to power minus mu raised to power x is 1 over 1 का factorial, and it is e raised to power minus 2 fine, and 2 raised to power 1 over 1। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.271, it is 0.271। Part B is what is the probability that there are at most 3 days with an accident। maximum कितने हैं, 3। so we are looking for probability x less than equal to 3, and this is equal to x equal to 0 to 3 e raised to power minus 2, और म्यू क्योंकि 2 था raised to power x over x factorial। ये आप टेबल में से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम 0 से 3 तक जा रहा है। तो टेबल में जाके अगर आप देखें तो ये आंसर कम्स आउट टू बी 0.857। सो वी हैव डन द पार्ट बी एंड एज वेल एज पार्ट ए। पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना था, देयर विल बी एन एक्सीडेंट ऑन वन डे, किसी एक दिन एक एक्सीडेंट हो जाए तो x इज इक्वल टू 1 एक्सीडेंट्स, तो वैल्यूज डाली तो ये जवाब आया, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 0.27 है, विच इज 27%, probably too high। तो probability that
x is less than 3, दैट मीन्स कि 400 में से 3 दिन, किसी 3 दिन एक्सीडेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 85%। अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑल दो बहुत कम है, मगर 400 दिनों में 3 दिन एक्सीडेंट हो जाए या कोई एक एक्सीडेंट हो जाए, उनकी प्रोबेबिलिटीज हमें मिल गई। नेक्स्ट है, ऑन एवरेज 1 in every 1000 ऑफ these items produce has 1 or more bubble। ये क्या है, एक एग्जांपल है जिसमें ग्लास फैक्ट्री है, उसमें ग्लासेस बनते हैं, तो उनमें अगर बबल आ जाए तो हम कहते हैं ये ग्लास जो है वो डिफेक्टिव है। तो वो कह रहा है ऑन द एवरेज 1 in every 1000 of these items produced has 1 or more bubbles। Fine, so probability is equal to 1/1000, which is 0.001. What is the probability that a random sample of what 8000 will yield fewer than 7 items possessing bubbles? अब हम probability निकालना चाह रहे हैं that random variable x यानी कि defective जो है ग्लास जिसमें bubbles हैं वो less than 7 है, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। n जो है टोटल वो है 88,000। अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि हमारे पास 7 तक हमने निकालने हैं, 6 तक हमने सारे निकालने हैं जो कि बबल्स हैं जिनमें, और टोटल सैंपल्स हमारे पास n इज 8000। अब अगर हम n चूज 7 करें, 8000 चूज 7 p रेज टू पावर 7 एंड q रेज टू पावर n-7, तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर बायनोमियल से किया जाए तो रिमेंबर हाउ टू डू इट इन द बायनोमियल, इट वाज x, अगर मैं यूं करूं n एंड हियर इट वाज p, तो इट वाज g n x p रेज टू पावर x एंड q रेज टू पावर n-x। इसमें अगर वैल्यूज डालूं तो मेरे पास अप टिल 7 है, चले मैं अगर 6 लिखता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू देखता हूँ, 5 4 3 2 1, अभी नहीं देख रहा। यहाँ पे क्या है 8000 और यहाँ पे क्या है 0.001। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 8000 6 p is 001 raised to power 6 एंड देन q जो होगा वो 1 माइनस p होगा रेज टू पावर 8000 माइनस 6। अब ये जरा कैलकुलेटर पे भी करना जरा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर पे डिफिकल्ट हो जाएगा, हो सकता है कैलकुलेटर ये करे भी ना, तो इसके कंप्यूटर कोड करना पड़ेगा। मगर क्योंकि वी नो कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स एन बहुत बड़े हो जाते हैं और प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस 0 हो जाती है, तो वी कैन यूज इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किससे, पॉइजन से, जो कि क्या था x yes एंड म्यू, x एंड म्यू। तो हम यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं कि हम पहले म्यू निकालते हैं विच इज 8000 इंटू 0.001। पता है आपको म्यू क्यों निकालते हैं इस तरह से, इट वाज n टाइम्स p, n वाज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जब यूं किया तो आंसर आ गया मेरे पास 8 एंड x इज इक्वल टू नंबर ऑफ items with bubbles. Then I can say probability of x being less than 7 is nothing but from x 0 to 6 हम ऐड करेंगे किसको, probability of x given 8 को, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है आपका 0.3134। और ये कहाँ से देख सकते हैं आप, टेबल में से आप देख के ये निकाल सकते हैं कि हम सम कर रहे हैं फ्रॉम x ऑन ऑल x अप टिल 6 एंड विद द मीन वैल्यू विच इज 8, लैम्डा t इज इक्वल टू 8 और म्यू इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट अब जी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी तक हमने जितनी डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ी हैं, पॉइजन हो, बायनोमियल हो
यूनिफॉर्म हो वो सारी की सारी डिस्क्रीट केस में थी, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स था अगर तो वो वैल्यूज ले सकता था 1 2 3 4 0, इवन नेगेटिव वैल्यूज ले सकता था, मगर दे वर फॉर डिस्क्रीट केस, कॉन्टिन्यूस नहीं था। और मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिबेट कर ली कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट केस हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस की। वो क्या है? वो हैं जिसमें रैंडम वेरिएबल जो है वो ऑब्वियसली वी स्टार्ट ऑफ विद द रैंडम वेरिएबल, द रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस। दैट मीन्स लेट्स से टाइम की बात करते हैं हम, मैं अभी से लेके फ्रॉम नाउ लेट्स से आई कॉल दिस 0 सेकेंड्स से लेके कल तक की बात करता हूँ 24 आवर्स के बाद तक, इस सेम टाइम पे मैं कहता हूँ आई वांट टू ऑब्जर्व एन इवेंट, और उसमें कोई भी टाइम हो सकता है, 0 सेकेंड 1 सेकेंड भी हो सकता है, 2 मिनट्स 3 सेकेंड्स 4 मिली सेकेंड 5 नैनो सेकेंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये कॉन्टिन्यूस बनता है, हर टाइम इज पॉसिबल। या मेरे घर में मेहमान आता है वो किसी टाइम भी आ सकता है, लेट्स से इस टाइम भी आ सकता है, इस टाइम पे, तो वो टाइम जो है वो अगर हम एग्जैक्ट मेजर करें तो इससे कॉन्टिन्यूम, वो उसमें ब्रेक नहीं है। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल दी थी हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हाई स्कूल या इन अ कॉलेज, फर्स्ट ईयर कॉलेज, मैं कहता हूँ सबकी हाइट मेजर करें तो हाइट जो है वो लेट्स से 4 फीट से लेके 7 फीट के दरमियान कुछ भी हो सकती है। सिर्फ ये है कि हमारी मेजरिंग एक्यूरेसी अच्छी हो तो हम हर हाइट मेजर कर सकते हैं, तो दैट कैन हैव ऑल द नंबर्स, कॉन्टिन्यूस नंबर्स, सो दैट रैंडम वेरिएबल कैन रिप्रेजेंटिंग द हाइट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। सो इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसी होंगी? तो जो पहली बात यह है कि हमें यह पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is always equal to 1 normalized, density function is greater than equal to 0, ये भी हमें पता है, और probability of random variable from A to B is from A to B fx dx, हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये probability मिल जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी किसकी? probability डेंसिटी फंक्शन की, these were the properties of probability density function. So सबसे easiest जो हम स्टार्टिंग करते हैं हम बेसिक से वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। One of the simplest continuous distributions in all of the statistics is the continuous uniform distribution. It's number one, it's continuous. That means the random variable can take any values between the limits, and it's uniform. This distribution is characterized by a density function that is flat, and thus the probability is uniform in a closed interval, say A to B. Let's say मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, वो वैल्यूज लेता है a से b तक, तो हम ये कहते हैं कि द डेंसिटी फंक्शन इज यूनिफॉर्म। सो अगर मैं इस एक्सिस पे डेंसिटी फंक्शन प्लॉट करता हूँ f(x), तो वो क्या होगा? वो a से लेके b तक यूनिफॉर्म ही रहेगा। यूनिफॉर्म रहने का मतलब क्या है? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब अगर ये चेंज नहीं हो रहा और यूनिफॉर्म है, सो इसका टोटल एरिया, यानी कि अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक और वेरिएबल जो a और b के दरमियान है, रैंडम वेरिएबल x, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग c क्या है? तो वो नियरली 0 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब भी हम निकालते हैं तो दिस इज डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पे 0 है, मगर अगर एक छोटा सा रीजन ले लूँ तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है। जो डेंसिटी फंक्शन होता है उसके यूनिट्स जो हैं, अगर मैं ऐसे ही रफली बताऊं तो वो क्या होंगे? उसके यूनिट्स होंगे प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट्स, जो कि डायमेंशनलेस होता है पर यूनिट। अगर x है डिस्टेंस है तो पर यूनिट डिस्टेंस होगा, अगर x टाइम है तो इट विल बी पर यूनिट टाइम, एरिया है तो पर यूनिट एरिया होगा। तो इसीलिए जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इससे तो हम करते हैं fx dx फ्रॉम एनी लिमिट्स जो भी हमें चाहिए,
x1 से x2 तक। तो फिर जब ये अगर प्रोबेबिलिटी पर डिस्टेंस है तो dx डिस्टेंस है, तो फिर आंसर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी। तो ये याद रखिएगा कि डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो पर यूनिट दैट रैंडम वेरिएबल होता है। अब सिर्फ c पे एग्जिस्ट करने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c पे एग्जिस्ट करने की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर a से b तक a इज दैट्स 0 एंड b इज 10, तो ये प्रोबेबिलिटी जो बनेगी ये 1/10 बनेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म है और टोटल एरिया इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो डिस्टेंस जो है वो 10 है, हाइट 1/10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए। अब इस केस में अगर 0 से 10 मैंने कर लिया और मैं आपको कहूं कि जी मुझे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी नियरली 0 है, बिकॉज एक पॉइंट जो है वो कोई एरिया गैदर नहीं करता। मगर अगर मैं ये कहूँ 6 से 7 के दरमियान आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो एक एरिया है जो कि आप निकाल सकते हैं। इस एग्जांपल को यूं लेते हैं, जरा प्लीज इसको सुनिएगा कि लेट्स से अगर मेरे पास एक रॉड है, मेटल रॉड है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेट्स से वो 1 किलोग्राम है, टोटल जो मेटल रॉड है वो 1 किलोग्राम है। मैं आपसे ये कहूं कि इसको मैं आधा कर लूं, तो आधे का वेट क्या होगा, आप आराम से कहेंगे इसका वेट होगा जी 1/2 किलोग्राम। मगर मैं आपको कहूं कि यार इसका सिर्फ इस पॉइंट पे, इस सर्कल पे क्या वेट है, बिल्कुल माइन्यूट, तो योर आंसर वुड बी नेग्लिजिबल, बिकॉज इसका कोई वेट नहीं है यहाँ पे। मगर इतने डिस्टेंस में इसका वेट जरूर एग्जिस्ट करते हैं। तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज डज नॉट मीन एनीथिंग, इज 0, मगर इन अ स्मॉल रीजन इट मीन्स। सो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज हमेशा याद रखें कि हम ये डेंसिटी है और जब तक ये उस रैंडम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती तब तक ये प्रोबेबिलिटी नहीं देती। और किसी एक वैल्यू पे, क्योंकि दे आर इनफिनिट वैल्यूज बिटवीन 0 and 10, if x is a random variable which is continuous, there are infinite values between 0 and 10, और हर वैल्यू ऐड होके तमाम वैल्यूज फ्रॉम 0 to 10 रैंडम वेरिएबल्स की, उन तमाम की प्रोबेबिलिटीज ऐड होके टोटल 1 बनता है। तो किसी एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो देयर आर, ये दोबारा मैं रिपीट करता हूं, x कितने नंबर है, इनफिनिट है, between 0 and 1 there are infinite values of the random variable x। वो तमाम infinite values की जो minute probabilities ऐड होके इक्वल टू 1 बन जाती हैं। तो किसी एक वैल्यू की probability होने की कोई रीजन नहीं है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एक लिखता हूँ वैल्यू, लेट्स से 6.72356 and so on so forth। तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसकी कोई वैल्यू है, इस पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं, कुछ भी नहीं होगी, मगर दो नंबर्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। चलें नेक्स्ट चलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि the density function of the continuous uniform random variable x on the interval a to b is given as density function f of x between a and b is given as 1/b minus a for a x from a to b, x from a to b, and it's 0 elsewhere। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं इसको दोबारा अगर बना दूं, अगर ये रैंडम वेरिएबल x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हाइट जो होगी वो 1/b minus a होगी, और elsewhere it will be 0, यानी कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, f x a to b प्लॉट कर रहे हैं, डेंसिटी फंक्शन ऑफ x फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन a and b,
तो वो ये चीज़ बनेगी और जिसकी हाइट जो होगी 1/b माइनस ए होगी। और ऑब्वियसली जब टोटल एरिया निकालेंगे तो 1/b माइनस ए दिस एफ ऑफ एक्स into the total distance which is b minus a, ये कैंसिल हो जाएगा तो इट इज इंडीड नॉर्मलाइज्ड। तो मैं प्रोबेबिलिटी को हमेशा एक दफा ये चेक कर लेता हूँ कि ये नॉर्मलाइज्ड भी है या नहीं है। सपोज दैट अ लार्ज कॉन्फ्रेंस रूम फॉर अ सर्टेन कंपनी कैन बी रिजर्व्ड फॉर नो मोर देन 4 hours। हम मैक्सिमम उसे 4 घंटे के लिए रिजर्व कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम है कंपनी में, मुस्लिम लोग जब मीटिंग करने जाते हैं तो वो रूम रिजर्व कर लेते हैं। हाउएवर द यूज ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम इज सच दैट बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉन्फ्रेंसेस अकर क्वाइट ऑफ, के कभी कोई छोटी मीटिंग हो जाती है उसमें कभी बड़ी हो जाती है, यानी कि कुछ 10 मिनट की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की। इन फैक्ट इट कैन बी अज्यूम दैट लेंथ एक्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस has a uniform distribution on the interval 0 to 4। तो टोटल इंटरवल जो है मेरा वो क्या है जी, 0 से 4 है और रैंडम वेरिएबल x इज लेंथ ऑफ टाइम एंड दैट इज बिटवीन 0 and 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? तो यूनिफॉर्म केस है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। So f x a b जो हमने लिखा था वो क्या हो जाएगा 1/4 minus 0 for random variable x between 0 and 4 and it is 0 elsewhere। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जी इसका। सेकेंड पार्ट देख लें, व्हाट इज दैट? What is the probability that any given conference lasts at least 3 hours? तो अब जो मेरा ग्राफ बना था वो क्या बना था जी, 0 से लेके 4 तक था ये और इसकी हाइट थी 1/4। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 माइनस 0, तो 0 तो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, 1/4 आ गया। और वो कह रहे हैं कि क्या निकालने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन कॉन्फ्रेंस लास्ट एट लीस्ट 3 hours। तो दैट मीन्स इट कैन बी 3 hours और अप टिल 4 hours, मैक्सिमम 3 से आगे जानी चाहिए। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 3 से लेके 4 तक की। तो दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्फ्रेंस लास्ट फॉर एट लीस्ट 3 hours। 3 घंटे लास्ट करेगी क्या आ गई, 3 से ज्यादा करेगी तो क्या आएगी, यू हैव टू सम इट अप। Then mean of a uniform distribution. How to find the mean of a uniform distribution? We know if the density function is of f(x), then to find the mean of x, what we do, we say we multiply it with x, f of x and integrate it. Simple. यहाँ पे x है, f of x dx। अब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मुझे डेंसिटी फंक्शन पता है, इट इज इक्वल टू 1/b माइनस a and it's only valid from a to b and it is 0 elsewhere। तो हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रहने देंगे, f of x की जगह 1/b माइनस a कर देते हैं और dx और इंटीग्रल इज फ्रॉम a to b। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। क्या हमने f of x की जगह ये वैल्यू डाली और क्योंकि ये सिर्फ a से b तक वैलिड थी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम किया करते थे, तो हमने वो माइनस कर लिया तो a to b बन गया। 1/b माइनस a इज अ कांस्टेंट, इट कैन कम आउट। और अगर इंटीग्रल देखें तो वो क्या बनता है, x dx। इस इंटीग्रेशन को आसानी से आप कर सकते हैं एंड इट बिकम्स व्हाट, x स्क्वायर फ्रॉम a to b एंड 1/b माइनस a इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां तक भी ठीक है। अपर लिमिट डाली x स्क्वायर में माइनस द लोअर लिमिट।
नेक्स्ट आप जी 1 ओवर बी माइनस ए, एक चीज आ गई, इनटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर इट इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए. एक चीज मैंने मिस किया यहाँ पे, जब हमने इंटीग्रेट किया था एक्स को तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी बाय 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी बाय 2 आना चाहिए, क्योंकि डी एक्स को इंटीग्रेट करते वक्त हमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आता है. तो b माइनस ए और b माइनस ए कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद b प्लस ए बाय 2. दिस इज द मीन वैल्यू एंड we represent it as mu. So hence we have proved that the mean of a uniform distribution is indeed mu is equal to a plus b by 2. A plus b by 2 is the mean of uniform distribution. Now to find the variance, this is interesting. To find variance we should remember the formula. The formula was, first of all, sigma square is equal to x minus mu whole square f of x d of x. Fine, x minus mu whole square f of x d of x. And the second method was that sigma square is equal to expected value of x square minus एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर. तो हम ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे करने को, अप्लाई करने के लिए. फर्स्ट भी कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से और सेकंड करते हैं. हम अगर सेकंड यूज करें तो उसमें पहली टर्म जो है वो हमें नहीं पता, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वो बाय डेफिनेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस फिनिटी से प्लस फिनिटी. हमें पता है एफ ऑफ एक्स पता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन ए एंड बी, तो हम इसको लिख लेंगे ए से बी एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स वॉज 1 ओवर बी माइनस ए इंटू डी ऑफ एक्स. बी माइनस ए बाय ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो एक ही स्टेप्स में अगर मैं कर लूँ जस्ट टू सेव स्पेस, तो 1 ऑफ बी ए, तो ये बनता है एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट्स ए से बी तक, विच इज 1 ओवर बी माइनस ए इंटू, सॉरी 3 भी यहां पे लिख लेते हैं हम, ये वाला 3 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब था तो अपर लिमिट बी क्यूब आ जाएगी माइनस ए क्यूब. सो दिस इज माय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. आई होप यहां तक तो समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ एक इंटीग्रेशन थी विच आई हैव डन हियर. एंड देन नेक्स्ट अप बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यह आपको कॉलेज से पता होना चाहिए, कॉलेज के ज़माने में आपने किया होगा, विच वॉज, ये तो पहले मैंने एज इट इज लिखा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब. ये आप करके भी देख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो यही चीज बन जाएगी दोबारा से. यहां से मैं b माइनस ए कैंसिल कर लेता हूं, सो आई गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एज बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 3. Now if I go back to this formula for my variance, which was, let's say, equation number 1, using 1, I can say sigma square is equal to b square plus ab plus
ए स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की थी, इट वाज इक्वल टू ए प्लस बी का आवर 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का आवर 2 का होल स्क्वायर, एंड इट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाय 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आवर 4। इनका स्क्वायर ले लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते हैं, आवर 4। अब एलसीएम ले लें, विच आउट कम्स आउट टू बी 12, तो 3 and 4 ये बचेगा 4b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम 12 है, 4 की जगह 3 आ जाएगा, और यह नेगेटिव साइन भी मैं साथ साथ चला रहा हूँ, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड माइनस 6ab। जब 2 को 3 से किया तो 6 बन गया। अगर इसको देखें आप तो 4b स्क्वायर से माइनस 3b स्क्वायर निकाल लें अगर, तो एक b स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को चेक करें, फिर 4a स्क्वायर को 3a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर बचेगा, एंड देन 4ab को माइनस 6ab से माइनस 2ab बचा, आवर 12, एंड आई कैन राइट इट एज b माइनस a का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सो वेरियंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह से निकाल ली। अगर इसको रिविजिट करें हम, तो व्हाट वाज आवर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इट वाज यूनिफॉर्म between a and b, and we said it is 1 over b minus a. It is 1 over b minus a. In the first part, the definition of variance is this thing, but we use the theorem which says sigma square is equal to expected value of x square minus the square of the expected value of x, and expected value of x का whole square. तो expected value of x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, by definition माइनस infinity से प्लस infinity x square multiplied by the density function integrated over x, ये हम करेंगे। यहाँ पे density function is 1 over b by minus a, लिमिट्स हो जाएंगी a से b तक, x square as it is रहेगा और dx भी है। 1 over b minus a बाहर चला गया इंटीग्रेशन से, और x square dx की इंटीग्रेशन जब की हमने तो बना x cube by 3 from the limits a to b। जब लिमिट्स डाली तो हमें बना 1 by 3 b minus a into b cube minus a cube, और b cube a cube एक फार्मूले के तहत इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो बनता है b minus a into b square plus ab plus a square, and we say using that expected value of x square and using it in equation number 1, what we did कि sigma square is equal to expected value of x square. Yes, from here I take the expected value of x square, b square plus ab plus a square over 3 minus the मीन का स्क्वायर, जो मीन हमने निकाला था लास्ट स्लाइड में, दैट वाज a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। जब ये मीन खोलूंगा, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 2 4 बन जाएगा। यस, a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। अब एक के डिनोमिनेटर में 3 है, दूसरे के डिनोमिनेटर में 4 है, तो एलसीएम इज 12। तो अब मैं इनको ऐड कर लूंगा। पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, 4 बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी प्लस 4 ए स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स आ गई। फिर माइनस, और यहाँ पे क्या है 12 था, 4 इसका डिनोमिनेटर था तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 into 2ab which is minus 6ab. If I write all them and
जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 4b² से 3b² निकाल लेता हूँ तो b² बचता है। 4a² से 3a² निकालता हूँ तो a² बचता है। 4ab माइनस 6ab मुझे रिजल्टेंट देता है -2ab का, और डिवाइड बाय 12, सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a our whole square over 12 is the variance of uniform distribution. तो आपको हमें मीन और वेरिएंस दोनों पता चल गया। मीन वाज a प्लस बी ओवर 2 एंड वेरिएंस इज b माइनस a होल स्क्वायर ओवर 12। नेक्स्ट अप बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा एक सवाल देता हूँ आज करने को, आप इस पे सोचिएगा। ये कहानी है, मे बी इट्स नॉट ट्रू बट बनाई हुई है न्यूटन के बारे में। कहा जाता है कि न्यूटन जब तीसरी जमात में था तो क्लास में शरारतें कर रहा था या बातें कर रहा था, तो टीचर, मैथ्स की क्लास हो रही थी तो टीचर डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो इसके इंटेलिजेंस को जानता था, तो उसने कहा भाई ऐसा करें, आप उसको बिजी करने के लिए, न्यूटन को बिजी करने के लिए, न्यूटन इज अ सेम पर्सन जिसमें बात कर रहा हूँ जो कि फिजिक्स के लॉज है, मगर एक ये कहानी है बनी हुई है, सही है या नहीं है इसके बारे में मैं कोई राय नहीं देता, मगर क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है। वो ये है कि एक बच्चे को कहा गया कि जी आप शरारतें ना करें, आप ऐसा करें, आप 1 से 100 तक तमाम नंबर्स ऐड करके मुझे बताएं। तो टीचर ने सोचा कि ये पूरा एक जो क्लास लेक्चर है उसमें वो यही करता रहेगा, 1 से 100 तक नंबर ऐड करता रहेगा, तो मैं बाकी बच्चों को पढ़ा लूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बेसिक क्वेश्चन यह है कि 1 से 100 तक नंबर हमें ऐड करने हैं। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, फिर लेट से यहाँ पे कहीं आ जाएगा 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100। ये 100 मार्क्स, 100 नंबर्स हैं, इनको ऐड करना था। तो द टीचर सेड के मुझे इसका आंसर निकाल के दें। हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, हमने सीरीज सम करनी सीख ली है, हम एक सीरीज बना के इसको सम कर सकते हैं, मगर डोंट फॉरगेट हम बात करें एक छोटे बच्चे जो कि तीसरी जमात में पढ़ता था, हाउ वुड ही ऐड देम। तो वो बच्चा जो भी था, न्यूटन था या कोई और था, वो काफी इंटेलिजेंट था, उसने 2 मिनट में इसका आंसर निकाल के टीचर को दे दिया। टीचर परेशान कि भाई इतना लंबा सवाल दिया है मैंने सम करने के लिए, छोटे बच्चे 2 नंबर्स को सम करने के लिए घंटा लगा देते हैं, तो इसने कैसे किया। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप इस पर जरा 1 मिनट सोचें कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द सीरीज फॉर्मूलास। अगर आपने अंदाजा लगा लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेट्स डू इट वन वे। यहाँ पे दरमियान में कहीं मेरे पास एक वैल्यू आएगी 50, यहाँ पे कहीं आएगी 51, और इससे पहले आएगा 49, और इस तरह से ये नंबर्स आएंगे। लेट्स फॉरगेट अबाउट 100 फॉर अ मिनट। हम याद रख लेते हैं कि हमने एक 100 साइड पे कर दिया। अब अगर मैं 1 को ऐड कर लूं किसमें, 99 में, तो मेरे पास एक 100 आ गया। अच्छा, आसान है। अब देखें 2 को मैं ऐड करूं किसमें, 98 में, अगेन आई विल गेट 100। 3 को 97 में, अगेन अनदर 100। तो आई कैन डू दैट अप टिल 49 एंड 50। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो अगेन 100 आया। तो कितने 100 हो गए मेरे पास, 1 से लेके 49 तक, और फिर एक ये 100 था आखिरी वाला। तो 49 टाइम्स 100, तो मेरे पास बेसिकली 50 100 हो गए। 50 100 यही बनता है या नहीं। 50 टाइम्स 100, 50 100 ये बन गए। और एक वैल्यू बच गई जिसको हम भूल रहे थे, दैट वाज 50 प्लस 50 इज द करेक्ट आंसर, इट इज 5050। अगर मैंने कोई जीरो गलत नहीं किया, माफ कीजिएगा, तो दिस शुड बी द
answer. What? Yes, 5050 is the answer if I add all numbers from 1 to 100. दोबारा रिविजिट कर लेते हैं. 4900 यहाँ पे हो गए, 49 टाइम 100 प्लस एक लास्ट 100 था, 50 हंड्रेड्स प्लस अनदर 50. तो जल्दी से जवाब निकल आया. इसका मेरे नेक्स्ट लेक्चर से क्या ताल्लुक है? लेट्स गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. आप इस पे सोचिएगा भी और हम साथ साथ इसे करते भी हैं. लेट्स से आप सब लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं. मैं स्टूडेंट 1 को कहता हूं कि मुझे आप तकरीबन 100 नंबर रैंडमली सिलेक्ट करके बताएं बिटवीन 1 एंड 0 एंड 100. बिटवीन 0 एंड 100 मुझे 100 नंबर सिलेक्ट करके बताएं रैंडमली, या 1000 नंबर सिलेक्ट करें बिटवीन 0 एंड 100. तो स्टूडेंट 1 हो सकता है मुझे नंबर दे, लेट्स से वो 50 दे 60, 65, 35, 20, 10, 0, so on so forth. इस तरह से नंबर दे दे. अब ये नंबर क्या है? रैंडम है और मैं कहता हूँ यूनिफॉर्मली, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ. अगर वो 100 पिक करता है या 0 पिक करता है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए. इट्स अ फेयर स्टूडेंट जो कि मुझे क्या दे रहे हैं? नंबर्स दे रहे हैं. फिर स्टूडेंट 2 को मैं कहता हूँ कि आप मुझे 100 दें, नंबर्स दे दें इसी तरह के, तो वो मुझे देता है जी 25, 30 एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह देता है 50, 100 एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसी तरह ये काम मैं तमाम स्टूडेंट से कराता हूँ, आप टिल स्टूडेंट n तक मैं ये सारे काम करा लेता हूँ. अब मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि प्लीज जरा मुझे इनकी एवरेज निकाल के दें. किस तरह? कॉलम वाइज. कॉलम वाइज मुझे जरा एवरेज निकाल के दें. इस कॉलम की भी, इस कॉलम के भी, तमाम कॉलम्स की एवरेज निकाल के दें. क्वेश्चन जरा रिपीट करते हैं कि मैंने स्टूडेंट 1 को कहा कि आप जी मुझे 0 से 100 तक कोई 100 नंबर निकाल के दे दें और इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ. तो अगर आपको याद हो कि 100 नंबर ये नहीं होगा कि उसमें 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 100 भी हो. तो वो जब रैंडमली सिलेक्ट कर होगा, या मैं उन्हें कहता हूँ कि एक डब्बा है उसमें मैंने 0 से 100 तक के नंबर्स डाल दिए हैं और उन कहता हूँ रैंडमली सिलेक्ट करें, एक निकालें फिर दोबारा डालते हैं, रैंडमली निकालते जाएं, तो वो मुझे 100 नंबर्स देता है. फिर दूसरा स्टूडेंट यही काम करता है, 100 नंबर्स मुझे देता है. अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम का एवरेज लूं तो क्या गैस है आपका? एवरेज कैसा होगा? यस, क्या गैस है? विल द एवरेज बी क्लोज टू 0? विल द एवरेज बी क्लोज टू 100? विल द एवरेज बी क्लोज टू 60? क्योंकि नंबर्स रैंडम है. अगर ये बहुत ज्यादा नंबर है, n स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि दिस इज 1000th स्टूडेंट, तो इसमें कभी 50 भी आएगा, कभी 100 भी आएगा, कभी 0 भी आएगा, कभी 49 आएगा, कभी 51 आएगा. तो जब उन सबको ऐड करके हम एवरेज निकालेंगे, दैट एवरेज शुड बी क्लोज टू 50. इट शुड बी क्लोज टू 50. कैसे? क्योंकि कभी अगर 49 आया तो उसमें 51 ऐड हो गया, उन दोनों की एवरेज 50 आ गई. फिर अगर कभी 3 आया था तो कभी 97 भी आ जाएगा, तो उसकी एवरेज भी 100 सम हो गया, तो एवरेज उसकी भी 50 होगी. तो तमाम नंबर जब रैंडमली जनरेट हुए हैं तो उनकी एवरेज क्लोज टू 50 आएगी. सिमिलरली ये नंबर भी जो अब मैं निकालूंगा वो भी क्लोज टू 50 हो सकता है. 55 आ गए, हो सकता है ये वाला जो है वो 35 आ जाए ये, मगर ज्यादातर नंबर्स जो होंगे वो 50 के नजदीक होने चाहिए. क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ऐसी रो है जिसकी एवरेज 100 आ जाए? 100 आने के लिए क्या चाहिए मुझे? कि तमाम के तमाम नंबर्स इस कॉलम में क्या होने चाहिए? 100 होने चाहिए, ताकि एवरेज मेरी 100 बने. तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट 1 भी अपनी 10वीं टर्न में 100 निकाले, स्टूडेंट 2 भी 10वीं टर्न में 100 निकाले, स्टूडेंट 3 भी 10th ट्रायल में 100 निकाले, और ऑल स्टूडेंट्स गेट 100. इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट. So therefore,
गेटिंग 100 इज वेरी रेयर केस, बहुत मुश्किल से आएगा, और इसी तरह किसी केस में 0 एवरेज आना वो भी बड़ा रेयर होगा, नियरली इम्पॉसिबल होगा। सो मोस्ट जो नंबर्स हैं वो क्लोज टू 50 और इस तरह से होंगे। तो ऐसे को अगर मैं प्लॉट करूं, तो मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूं, तो 50 के नज़दीक हाईएस्ट होंगे, फिर उससे नज़दीक थोड़े कम हो सकते हैं, फिर 100 के ऊपर जाके नियरली 0, इसी तरह 0 पे जाके नियरली 0। तो कोई ग्राफ जो मेरा बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, विच विल बी लाइक दिस। और ऐसी कर्व को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे हम अगले लेक्चर में दोबारा से शुरू करेंगे, इसको इस पे दोबारा बात करेंगे जरा डिटेल में, मगर ये आपकी सोचने के लिए है, तो इस पे जरा सोचिएगा, ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये सही है या नहीं, और इसमें और ऐड कीजिएगा अपने आप को समझाने के लिए कि एवरेज के नज़दीक, मिडल के नज़दीक ज़्यादा नंबर्स आएंगे और मिडल से दूर कम नंबर्स आएंगे। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके कहाँ पे जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई लेक्चर फॉर टुडे। समरी क्या है कि हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू किया, नॉर्मलाइजेशन भी देखी थी उसकी हमने पहले, आज उसके मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस भी कैलकुलेट किए हमने, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे, फिर हमने कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी हमने एक सॉल्व की, और फिर हमने थोड़ी सी मोटिवेशन जनरेट की अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अपना ख्याल रखिएगा, रेफरेंसेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। डू हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।